Good morning, students. So, today in our English literature class, I will be explaining you the chapter 16, which is The Merchant of Venice. And this chapter, or you could say this is basically a play or a drama which is written by, a very famous writer of our English literature, and the name of the author or the writer is Shakespeare. So, everybody knows that Shakespeare is a very renowned writer of English literature. Okay, so The Merchant of Venice is a very popular drama which he wrote, and now we will study it, what is in this drama or play. Okay, so before reading that, first we will have to just understand what are the characters in this play. So the first character is Antonio, who is a merchant. A merchant means businessman or someone who does business. And second is Bassanio. Bassanio is his friend, means friend of Antonio, and Bassanio is lover of Portia. And now Shylock. Shylock is a moneylender. And next is servant, Duke of Venice. Basically, Duke of Venice means someone of higher authority, or chief, or you could say a judge. But I don't know why it is written servant here. But Duke of Venice means a person who enjoys a higher authority, or who is a chief or judge of Venice. And the next character is Portia. Portia is wife of Bassanio. And next character is Nercia. Nerissa. Nerissa is a maid of Portia. And then Lorenzo. Lorenzo is Jessica's lover. Basically, who was Jessica? Jessica was daughter of Shylock. Shylock was a moneylender. Okay, so now we will first understand the background of the play. Yeah. So it is written as Bassanio, needing money to be a suitor to Portia, asks his friend Antonio for a loan. Antonio's money is all tied up in shipments away from Venice, so he approaches Shylock, a moneylender. Shylock agrees to lend the money on a condition that if Antonio does not pay it back by an appointed time, Shylock may cut a pound of flesh from him. Not taking him seriously, Antonio agrees. Bassanio prepares to leave, for allowing his friend Gratin- Gratino to accompany him. And then, yeah, Loslet Gobo, Shylock's servant, decides to leave him, telling his father about his plan. Lorenzo, with the help of Salario, and Gratino, plot the plot to help Jessica, Shylock's daughter, to escape. While Shylock is out dining with Antonio, Jessica and Lorenzo elope with some of Shylock's money. Meanwhile, Portia is unhappy with his suitors. Her father has decreed that she must marry the man who chooses from the three caskets, the one containing her picture. Unfortunately, fortunately for Portia, both the Prince of Morocco and Aragon both fail. Being seduced by the external glamour of the two incorrect caskets, when Bassanio arrives, he chooses the right casket. Gratinio falls in love with Nerissa, Portia, waiting woman. In Venice, Solanio and Salario hear that some of Antonio's ships are lost, and Shylock promises to redeem his bond. And the Jew Tubal brings him news of Antonio's loss and Jessica's fortune. Portia and Nerissa give Bassanio and Gratino rings in honor of their love and make them vow never to be parted from them. Okay, so now I will explain it in Hindi. So basically, हमें पता चल गया कि सारे कैरेक्टर्स इस प्ले में क्या क्या है। एंटोनियो जो एक मर्चेंट है, जिसको आप व्यापारी कह सकते हो। बेसिनियो एंटोनियो का फ्रेंड है, और पोर्सिया को वो लव करता है, ठीक है। उसके बाद शाइलॉक है। शाइलॉक एक मनी लेंडर। मनी लेंडर मतलब जो पैसे उधार उधार देता है। और यहाँ पर जो सर्वेंट लिखा है ना, ये मुझे समझ में क्यों नहीं आया। बेसिकली सर्वेंट की जो कैरेक्टर इन्होंने दिया है, ड्यूक ऑफ वेनिस। ड्यूक ऑफ वेनिस मतलब एक बेसिकली ड्यूक ऑफ वेनिस एक ऐसा कैरेक्टर था इस प्ले में, जो कि एक जज की तरह बिहेव कर रहा था, या जज का रोल प्ले कर रहा, ठीक है। तो उसके आगे सर्वेंट क्यों लिखा है नहीं समझ में आया मुझे। खैर उसे छोड़ दो। आपको ये समझना है कि ड्यूक ऑफ वेनिस मतलब एक बेसिकली जज की तरह। पोर्शिया कौन थी? वाइफ ऑफ बेसानियो। आगे चल के जो बेसानियो की वाइफ बनने वाली थी वो पोर्शिया थी। नेरिसा कौन थी? पोर्शिया की एक मेड थी, ठीक है। लोरेंजो कौन था? जेस्कास लवर, मतलब शाइलॉक था, उसकी एक डॉटर थी जेस्का, उसका लवर कौन था? नरिसा, सॉरी लोरेंजो। अभी क्या है ना, बेसानियो क्या करता है, उसको पैसा चाहिए होता है। बेसिकली बेसानियो कुछ नहीं करता था, लेकिन वो एंटोनियो का अच्छा दोस्त था, और एंटोनियो काफ़ी अच्छा आदमी था। तो जब बेसानियो को शादी करनी होती है पोर्शिया से, तो देखो पोर्शिया एक लेडी रहती थोड़ी, ठीक है, रिच फैमिली की। तो अब बेसानियो को उससे शादी करने के लिए थोड़ा पैसे चाहिए होते हैं उसको, थोड़ा मतलब, क्योंकि ऐसे तो जा नहीं सकता था ना। उसके घर जाएगा, बेसिकली उसके घर जब जाएगा
तो उसे थोड़े से पैसे चाहिए थे अपने आप को वेल टू डू मेंटेन करने के लिए और उससे मिलने जाने के लिए या उसका हाथ मांगने, जो भी करना, ठीक है। तो जब वो एंटोनियो से मांगते हैं तो एंटोनियो क्या कहता है कि इस समय वो पैसे देने में असमर्थ रहता है, क्योंकि उसने अपने सारे पैसे को अपने शिपमेंट्स में, मतलब जो व्यापार करता था तो वो सभी पैसे का सामान खरीद के उसको शिप्स के साथ अपने अलग अलग देशों में भेज दिया था। तो वो कहता है अभी तो फिलहाल मैं पैसा नहीं दे सकता। तो इसलिए फिर क्या होता है, वो कहता है लेकिन आप किसी और से अगर पैसा मांगो तो मैं आपकी गारंटी लेने को तैयार हूँ कि हाँ मैं पैसा लौटा दूंगा, ठीक है। तो इसके बाद ये लोग कहाँ जाते हैं, शाइलॉक के पास जाते हैं पैसा मांगने। शाइलॉक क्या करता है, पैसा देने को तैयार तो हो जाता है, लेकिन वो एक कंडीशन रख देता है कि अगर पैसा टाइम पे लौटाया नहीं गया तो वो क्या करेगा, एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश उसकी बॉडी से निकाल लेगा, जहाँ से भी वो मर्जी उसकी, वहाँ से, ठीक है। तो अभी आगे फिर क्या हो जाता है लॉन्सलेट गोबो, शाइलॉक सर्वेंट। लॉन्सलेट गोबो क्या था, शाइलॉक का सर्वेंट था। वो क्या करता है, डिसाइड करता है लीव, मतलब उसको छोड़ देने को, मतलब उसको छोड़ना चाहता है शाइलॉक को, क्योंकि शाइलॉक अच्छा आदमी नहीं था। फिर टेलिंग हिज फादर अबाउट हिज प्लान, अपने फादर को भी अपने प्लान के बारे में बताता है ये गोबो कि मैं शाइलॉक के साथ नहीं रहना चाहता और छोड़ना चाहता हूँ उसे, ठीक है। अभी जो लोरेंजो था वो देखो हमने पढ़ा ऊपर कि वो शाइलॉक की डॉटर जो थी जेसिका, उसको प्यार करता था, लव करता था। तो वो क्या करता है, अपने कुछ फ्रेंड्स रहते हैं जैसे सेलेनियो, सेलेरियो एंड ग्रेटिनो, इनके साथ क्या करता है, प्लानिंग वानिंग करता है और कुछ पैसे वैसे लेके भागने का पूरा प्लानिंग कर लेता है शाइलॉक की डॉटर के साथ, ठीक है। जब क्या होता है, जब पैसे मांगने लोग गए रहते हैं ना, बेसानियो और ये एंटोनियो उसके घर पे शाइलॉक के, उस समय जब वो डाइनिंग कर रहा होता है, मतलब पूरा डील वील फिक्स करने के बाद, ये सब एग्रीमेंट करने के बाद, जब शाइलॉक खाना खा रहा होता है इनके साथ, उसी समय क्या होता है, जो लोरेंजो रहता है वो जेसिका के साथ पैसा वैसा लेकर शाइलॉक का थोड़ा घर से भाग जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ जब पूरा सिस्टम जब तब हो जाता है, अपना डील वील हो जाती है इन लोग के बीच में, एंटोनियो, बेसानियो और शाइलॉक के बाद, उसके बाद बेसानियो निकल जाता है अपना उससे मिलने के लिए पोर्शिया के पास, क्योंकि वहाँ उसको उससे शादी करनी थी। और पोर्शिया क्या होता है ना पोर्शिया के लिए और भी रिश्ते आए होते हैं, जैसे कि एक कौन रहता है, प्रिंस ऑफ मोरक्को रहता है, मोरक्को। और दूसरा कौन रहता है, प्रिंस ऑफ एरागन रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो पोर्शिया के शादी करने के लिए इसके फादर ने एक कंडीशन रखी थी कि 3 ताबूत थे, ठीक है। और उन 3 ताबूत बेसिकली, एक गोल्ड रहता है, एक सिल्वर रहता है, एक लेड का ताबूत रहता है। और उन किसी ताबूतों में एक में ही पोर्शिया की पिक्चर रहती है, और उसके फादर ने ये उससे मतलब प्रॉमिस किया था कि जो सही ताबूत चुनेगा उसकी पिक्चर वाला, उसी को शादी करने को मिलेगा, ठीक है। तो किस्मत से क्या होता है कि जो दोनों प्रिंस रहते हैं ना, मोरक्को के और ये एरागन, ये दोनों प्रिंस रहते हैं, इन्होंने गलत ताबूत चुन लिया रहता है, क्योंकि सोने और चांदी का चुनते हैं, क्योंकि उससे बाहरी लुक से ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने वो चुना था, गलत चुना था। और लेकिन जो बेसानियो रहता है वो जाके क्या करता है, लेड वाला ताबूत चुनता है। और क्यों चुनता है उसके बारे में तो कुछ अभी बताया नहीं है, बस ये पता है कि वो करेक्ट ताबूत चुन लेता है और उसकी शादी तय हो जाती है। और साथ में ना बेसानियो जब जाने वाला रहता है तो अपना एक फ्रेंड ग्रेटिनो, इसको भी अपने साथ अलाउ कर देता है, ठीक है तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। और ग्रेटिनो वहाँ पहुँच के क्या करता है, जो नर्सिया थी, इसकी मेड, जो पोर्शिया की मेड थी, नरिसा, उससे इसको प्यार हो जाता है। और फिर ये क्या होता है, बेसिनो पोर्शिया से और ग्रैटिनो नरिसा से, ये दोनों लोग क्या करते हैं, अपना बकायदा शादी उदी का प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इधर बीच क्या हो जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है कि जो एंटोनियो रहता है, इसके कुछ शिप्स जो रहते हैं वो समुद्र में कहीं खो जाते हैं, ठीक है। अब हो जाता है इसको बहुत लॉस, क्योंकि अब शिप्स तो इसके खो गए। अब क्या रहता है ना, जो शाइलॉक रहता है, एक तो उसकी बेटी भाग चुकी रहती है, तो उस ऊपर से गुस्साया रहता है काफ़ी ज़्यादा वो। तो वो कहता है अब तो मैं अपना पूरा पैसा वसूल करूंगा, पैसा तो क्या, मैं उसका 1 पाउंड फ्लैश चाहिए मुझे एंटोनियो को। एंटोनियो तो उस समय सोचा था कि ये मजाक कर रहा है, लेकिन अब वो मतलब कहता नहीं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये बात उसको कौन बता देता है, शाइलॉक को जो पैसा उधार दिया रहता है उसको ना, एक बात ये कौन बता दिया जाता है कि एंटोनियो के शिप्स खो गए हैं समुद्र में, ट्यूबल नाम का एक आदमी बता दिया जाता है, ठीक है। और ये जो अनदर ज्यू लिखा है ना, ज्यू मतलब जूइश कम्युनिटी होती है बेसिकली, एक जैसे धर्म होता है जूइश, इज़राइल के लोग होते हैं ज़्यादातर ज्यू। तो वो जाके ट्यूबल क्या करता है, शाइलॉक को बता देता है कि उसकी शिप्स खो गई हैं, अब तुम अपना पैसा नहीं मिलने वाला है तुम्हें। फिर ये सब होता है। और तब इन लोग को, लेकिन जो बेसानियो रहता है और ग्रेटिनो रहते हैं, ये लोग को तो पता नहीं रहता, ये लोग अपना वहाँ शादी उदी करते हैं। और क्या करते हैं, पोर्शिया और जो उसकी फ्रेंड थी, सॉरी मेड थी उसकी, नरीसा, ये दोनों लोग क्या करते हैं ना, अंगूठियाँ देते हैं बैसिनो और ग्रेटिनो को। अंगूठी देते हैं और कहती हैं कि ये अंगूठी तुम्हें कभी भी नहीं उतारनी है, क्योंकि इसके हाथ हम तुम्हारे साथ हमेशा के लिए जुड़ गए हैं, इसे कभी मत उतारना उतारना, ठीक है। अब क्या होता है, Celerio arrives with Lorenzo and, वहाँ आगे क्या लिखा है नेक्स्ट पेज,
and Jessica brings news that Antonio, unable to repay his loan, has been arrested and that Shylock is demanding his bond. अभी क्या होता है ना, सिनेरियो आता है लॉरेंजो के साथ, ठीक है, और क्या करता है जेसिका के साथ, लॉरेंजो और जेसिका के साथ आता है और ये खबर बताता है बैसिनो को कि शायलॉक, एंटोनियो पैसा नहीं दे पा रहा है और अब शायलॉक क्या कर रहा है, अपने वो जो बॉन्ड था या जो उसने पेपर साइन किया था उसके हिसाब से वो अपना उसका फ्लैश मांगने को कह रहा है, ठीक है, ऐसा सब कहने लगता है, ठीक है। अब बैसिनो क्या करता है, तुरंत ही वापस आता है वेनिस, वेनिस वापस आता है अपने दोस्त को बचाने के लिए पैसे लेकर, ठीक है, और वो पोर्शिया से पैसे लेके आता है कि मैं अपना लोन चुका दूंगा और अपने दोस्त को बचाऊंगा, ठीक। लेकिन जब शायलोक रहता है ना, वो एंटोनियो की जो मुराद रहती है या जो उसकी दलीलें रहती है उसको सुनने से बिल्कुल मना कर देता है। कहता है मुझे पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, अब समय बीत चुका है, अब तो मैं तुम्हारे 1 पाउंड फ्लैश ही लूंगा तुम्हारी बॉडी से, ठीक। तो पोर्शिया और नेरिसा क्या करते हैं, ये लोग भी पीछे पीछे बैसिनो के चुपके से बिना बताए वेनिस आते हैं और डिस्गाइज एज ए लॉयर कॉल्ड बेल्थेजार एंड हिज क्लर्क। अच्छा, पोर्शिया क्या बनती है, एक लॉयर बन के आती है, बेल्थेजार बन के आती है, और नेरिसा उसकी क्लर्क बन के आती है, ठीक है। ये लोग ऐसे बन के वाप वेनिस में भी आ जाते हैं, ठीक है, टू डिफेंड एंटोनियो अगेंस्ट शायलॉक। और किस लिए आते हैं, ताकि वो एंटोनियो को बचा सके शायलॉक से, उसका केस लड़ सके, ठीक है। So I think this will be enough for today, and in the since it's very big chapter, we will study the further portion in the next classes. Okay, thank you class.